Now we are going to start from here. अब काफ़ी नज़दीक है मतलब this thing is going to end. So we had finished the convention on pollutants, the Stockholm Convention 2004, the Basel Convention 1989 Switzerland, and that was basically for the and that also includes the pollution caused from dismantling ships. So it is basically hazardous waste transboundary movement. It is most comprehensive. It is signed by 187 member nations, hence it is quite comprehensive. And right, so whereas Stockholm Convention was more about persistent organic pollutants having long lifetime, which easily get accumulated in the fatty tissues. So 12 initial pollutants were put under various restrictions under various annexes. So Annex A actually means elimination, so which includes certain pesticides like aldrin, dialdrin, heptachlor, Mirex, PCB, toxaphene. Recently in 2019, 2 more were added into the Annex A list that were meant to be eliminated. So these were PFOA and dicofol. So the countries which have not ratified the Stockholm Convention are USA, Israel, Italy, and Malaysia. And then Annex B includes the pollutants which need to be restricted. So they are various kinds of DDTs. Then we have Annex C, that is preventing the unintentional production like benzofurans, right? So that is the Stockholm Convention of 2004. Then Basel Convention, hazardous waste transboundary movement should be checked. Then it is quite comprehensive, 187 parties, and it also includes pollution caused by dismantling the ships, and it was signed in 1989 and the headquarters is in Switzerland. Then Rotterdam Convention starting 1998 and enforced in 2004. Now that is legally binding, and a couple of instruments to implement the Rotterdam Convention are the prior informed consent, which is initiated by the UNEP and FAO, and the other instrument is decision guidance document, which must be circulated to all the parties before international trade of hazardous chemicals occur. Moving on to Minamata, so that is about mercury pollution, controlling anthropogenic releases of mercury pollutants. So it was adopted in 2013 and forced from 2017. Then MARPOL, that was I think started in 1973, and India is legally it is. So MARPOL is I think it is legally binding, is it? MARPOL is, it was adopted in 1973 and it is managed by International Maritime Organization, and India is a member of this convention, and I think there are 6 kinds of pollution arising from ships which are covered under the MARPOL. So it could be noxious liquid substance, it could be harmful substance carried in the ships, sewage, garbage, pollution arising from the ships, and even the oils that the ships run upon and the ships contain or carry. So that was MARPOL, legally binding. India is a member, 1973, International Maritime Organization. Then we have London Dumping Convention, that is 1975. So that is non-legally binding, first of all, and India is not a member of that. Then the permanent secretariat is provided by International Maritime Organization, okay, and India is not a member of that. It was signed in 1975. Lastly, Cartagena Protocol padhe the, so it was on biosafety and safe handling of living modified organisms, and also the 10th meeting I think of the Conference of Biodiversity, Conference of Parties on Biodiversity, the 10th meeting actually gave birth to Nagoya Protocol, which actually includes 20 targets spread across 5 sections from A, B, C to E, and these are commonly called as IG targets. The first one is identifying the causes, addressing the causes of biodiversity loss. The second is reduce the direct pressure on biodiversity. Third is safeguarding ecosystem, species and genetic diversity. Fourth is enhanced benefits to all arising from the biodiversity products. And fifth is enhanced implementation. So these are commonly called as IG targets, where 20 strategic targets were put under 5 sections. Cartagena Protocol on Biosafety was signed in 2003. Okay, then coming, अब आज यहाँ से start करते हैं Convention on Biodiversity. Like I said, that is also a document which was released in the aftermath of Earth Summit 1992. Implementation started from 93, where the first COP
at Nassau, Bahamas took place, and the latest COP10 in Nagoya, Japan has taken place. So where the first conference of parties of the UNFCCC climate change, that happened in Berlin, okay, whereas the first conference of parties related to Convention on Biodiversity, that happened in Nassau, Bahamas. Now the latest COP14 happened in Sharm el Sheikh in Egypt, and COP15 is due in Kunming, China. So चाइना से ना हो पाएगा. अच्छा, एनीवेज, तो लेटेस्ट COP15 हुआ है अभी चाइना में होने वाला है, तो देख लेना COP15 ऑफ CBD कहाँ हुआ है. इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी 2010 था, इंटरनेशनल डेकेड ये ऑफ बायोडाइवर्सिटी ये है, और ईयर तो 2010 है, ठीक है. देन इंटरनेशनल सीड ट्रीटी क्या होती है? ये आई थिंक प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज एंड फार्मर्स, इसका फुल फॉर्म कुछ याद नहीं आ रहा है. प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, फूड एंड एग्रीकल्चर, ठीक है. सो okay, international seed treaty, it was signed in Madrid in the year 2001, and India is a member of that treaty. Okay, so India is a signatory member to this thing. So that is plant genetic resources, food and agriculture, that that I think oversees the implementation of international seed treaty, which was signed in Madrid 2001, and India is a signatory to that. Then Bonn Convention on Migratory Species, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज़ भी एक हुआ था. आई थिंक ये जो 1979 में ही साइन कर दिया गया था, ठीक है. सो दैट इज़ लाइक वे बिफोर द अर्थ समिट, तो ये भी याद रखो. अब फिर साइट्स 1975 में आया था, दैट इज़ मैनेज्ड बाय UNEP. तो साइट्स क्या है, लीगली बाइंडिंग है, बट इट कैनॉट सुपरसीड द लोकल नेशनल लॉज, ठीक है. विल कम टू दैट. तो बॉन कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज़, दैट वाज साइंड इन 1979 and enforced in 1983. So this also has species-based appendices. India is a signatory. So India Bonn Convention में जो Convention on Migratory Species sign हुआ था 1979, 1983 में, is India a member of that? Yes, India is a member of that. And CMS is the only global convention for conservation of migratory species, their habitats and migratory routes. तो ये important point है. Appendix 1 threatened with extinction, and the Appendix 2 species that could benefit from international cooperation, ठीक है. तो इसमें दो अपेंडिक्स होती हैं, एक जो थ्रेटन है एक्सटिंक्शन की वजह से, और अपेंडिक्स 2 है द स्पीशीज़ दैट कुड बेनिफिट फ्रॉम इंटरनेशनल कोऑपरेशन, दैट इज़ केप्ट इन अपेंडिक्स 2, राइट. देन वी हैव साइट्स 1975, whereas CMS Bonn Convention 1979, 1983, जबकि साइट्स 1975 में हुआ था. So CITES is legally binding, and however it cannot supersede the local national laws. Okay. Then इसमें CITES में भी Appendix 1 होता है, most endangered species, whereas Appendix 2, the species not currently endangered but if neglected can very soon become endangered. These are called as lookalike species. तो question पूछेगा कि lookalike species is related to which instrument या which convention? तो it is related to CITES 1975, which is legally binding, which is overseen and implemented by UNEP. तो कंजर्वेशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज़ में भी दो अपेंडिक्स हैं, और साइट्स 1975 उसमें भी दो अपेंडिसेस हैं, ठीक है. अपेंडिसेस 1 में मोस्ट एंडेंजर्ड वाले, और 2 में लुक अलाइक स्पीशीज़, जिनको अगर नेग्लेक्ट किए तो फिर वो एंडेंजर्ड हो जाएंगे. नाउ ट्रेड हेयर इज़ डन थ्रू द टूल री एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट. तो जस्ट लाइक क्योटो प्रोटोकॉल में हमने 3 मैकेनिज्म्स पढ़े थे, इंटरनेशनल एमिशन ट्रेडिंग, जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, उसी प्रकार से यहाँ जो साइट्स में भी एक मैकेनिज्म है, दैट इज़ री एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट. ट्रेड हेयर इज़ डन, ट्रेड किस चीज़ का ट्रेड? एनिमल स्पीशीज़ का, ठीक है. तो दैट इज़ डन थ्रू री एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट. फिर साइट्स के द्वारा एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था, इंटरनेशनल कंसोर्शियम फॉर कॉम्बैटिंग वाइल्ड लाइफ क्राइम. सो दैट वाज लॉन्च्ड इन 2010 बाय साइट्स. इसमें 5 इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं. अब वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी हैं? UN ऑफिस फॉर ड्रग है, वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड बैंक है, इंटरपॉल है, और साइट्स इटसेल्फ है. तो देखो इसमें कुछ यूनिक हैं, जैसे इंटरपॉल आ गया इसमें कूद के, ठीक है. वर्ल्ड बैंक है, और वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन, और UN ऑफिस फॉर ड्रग्स हैं. तो ये सारे हैं किसमें? इंटरनेशनल कंसोर्शियम फॉर कम्बैटिंग वाइल्ड लाइफ क्राइम. अनदर प्रोग्राम बाय साइट्स इज़ माइक, ये हम पढ़ चुके हैं, हाथियों के लिए मॉनिटरिंग इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स. तो हमने अभी तक 3 देख लिए. कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, दैट वाज इन द आफ्टरमैथ्स ऑफ अर्थ समिट, ठीक है. और कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी का COP15 कुनमिंग चाइना में होने वाला था, अभी देखते हैं कहाँ हुआ है. देन ईयर एंड डेकेड देख लिया.
इंटरनेशनल सीड ट्रीटी by Plant Genetic Resources, Food and Agriculture, signed in 2001 in Madrid. India is a signatory. Then we studied about Conservation of Migratory Species, Bonn Convention 1979, 1983. India is a signatory, जिसमें 2 appendix होते हैं. Then we studied about CITES 1975, which is managed under UNEP. उसमें भी 2 appendix होते हैं. उसमें लुक अलाइक स्पीशीज़ होते हैं. उसमें री एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करके एनिमल के बीच ट्रेड किया जाता है. साइट्स ने 2010 में इंटरनेशनल कंसोर्शियम फॉर कम्बैटिंग वाइल्ड लाइफ क्राइम लॉन्च किया था. और ये जो इनिशिएटिव है ये 5 लोग मिल के चलाते हैं बाय वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, इंटरपोल, साइट्स एंड यूएन ऑफिस फॉर ड्रग्स. साइट्स के द्वारा एक और चलाया जाता है माइक, मॉनिटरिंग इलीगल किलिंग ऑफ एनिमल्स. ठीक है. देन वी हैव ये क्या है? ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट वेरियस NGOs एंड इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस. ठीक है. उससे पहले हम ज़रा सेव कर लें अपना ये इतना. ओके, तो ये अब यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं. UNFFF, व्हाट इज़ दैट? देख लेते हैं. यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट्स. ठीक है, ऑल राइट. तो UNFFF क्या है? ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है. इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है. माई फैमिली रिसेंटली विजिटेड न्यूयॉर्क. तो ठीक है, तो ये इस तरह से याद कर लो कि अभी हाल ही में घूमे थे न्यूयॉर्क में. तो ये कौन चलाता है? इकोसॉक चलाता है. ठीक है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, आई थिंक दैट इज़ द फुल फॉर्म. तो यूएन का एक अंग है, एक बॉडी है, यूएन इकोसॉक, दैट अंडरटेक्स दिस इनिशिएटिव. यूएन फोरम फॉर फॉरेस्ट्स क्या है? यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट्स. फोरम ऑन फॉरेस्ट्स, तो 3 F क्यों है भाई? फोरम ऑन फॉरेस्ट्स 2 ही होंगे ना. एनीवेज, सो ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, न्यूयॉर्क में बेस्ड है, यूएन इकोसॉक के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है. देन ITTI, ये एक NGO है. इट इज़ नॉट एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, रिमेंबर दैट. ठीक है, ये एक NGO है. जबकि ये UN फोरम ऑन फॉरेस्ट्स, दैट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बाय UN इकोसॉक. ठीक है, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क. वेयर एज ITTI, आई थिंक दिस इज़ इंटरनेशनल टिम्बर, कुछ ऐसे ही फुल फॉर्म है इसका. तो इसका हेडक्वार्टर है योकोहामा, जापान में. एंड दिस इज़ बाय UNCTAD. इनिशिएटिव किसका है? UNCTAD. इनिशिएटिव तो किसी का भी हो सकता है, सरकारी गैर सरकारी संस्था का, बट इट इज़ मतलब फिर इम्प्लीमेंट एंड डे टू डे मैनेजमेंट NGO कर रहा है या फिर गवर्नमेंट्स कर रही हैं, वो देखना होता है. तो अभी UNCTAD ने जापान योकोहामा में ये ITTI बना दिया NGO. ठीक है, वेयर एज UN इकोसॉक ने बनाया ये UN फोरम ऑन फॉरेस्ट्स. इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है. ठीक है, फिर आगे देखते हैं. तो ये बर्ड लाइफ इंटरनेशनल है, ये भी एक NGO है, ध्यान रखना, सरकारी नहीं है, NGO है, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल. इसका हेडक्वार्टर कैम्ब्रिज UK में है. इट वर्क्स क्लोजली विद द IUCN एंड पब्लिशेस इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरियाज. ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट इसका एक है, IBA नामक, इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरियाज, एंड इट वर्क्स क्लोजली विद IUCN. सो अगेन दैट इज़ एन NGO. ठीक है, तो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल इज़ एन NGO. ट्रू. कैम्ब्रिज, यूनाइटेड किंगडम. ईयर इतना ना भी याद रखो तो चलेगा, 1922, मतलब समझ लो काफ़ी पहले बना था. ठीक है, IUCN के साथ काम करता है. इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरियाज नामक डॉक्यूमेंट पब्लिश करता है. बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, NGO, 1922, कैम्ब्रिज, यूनाइटेड किंगडम. मूविंग ऑन. सावेन क्या है? ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें मोस्टली आई थिंक साउथ एशिया वाले देश हैं. तो भूटान, अफ़गानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश. ठीक है, इंडिया, पाकिस्तान, मालदीव्स, नेपाल, श्रीलंका. नाउ इसका भी एक देख लो कि क्या है फुल फॉर्म, एटलीस्ट देख लो. साउथ एशिया वाइल्ड लाइफ एनफोर्समेंट नेटवर्क. ठीक है, तो एनफोर्समेंट नेटवर्क साउथ एशिया वाइल्ड लाइफ के लिए, तो दैट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. इसमें इंडिया भी है, ध्यान रखना. देन ट्रैफिक की बात करो तो दैट इज़ एन NGO बाय IUCN एज वेल एज वर्ल्ड वाइल्ड फंड. ठीक है, फॉर वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क. वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क को देखने के लिए ट्रैफिक नामक NGO है. कॉम्प्लीमेंट्री टू साइट्स भी वही काम करता है, बट साइट्स क्या है? साइट्स तो मेरे ख्याल से इंटर गवर्नमेंटल है, अभी ये NGO है. ठीक है, तो कैम्ब्रिज, यूनाइटेड किंगडम, ट्रेड रिकॉर्ड्स एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन कॉमर्स. तो आई थिंक ट्रैफिक NGO का कैम्ब्रिज यूनाइटेड किंगडम में है क्या? देख लो ये कहाँ है. ट्रेड इन वाइल्ड स्पीशीज़, traffic.org.
इसका अबाउट अस। तो ये जो ट्रैफिक है ये ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ स्पीसीज़ को चेक करता है, ठीक है। इसका एड्रेस कहाँ है यार, ये देखो कैम्ब्रिज लिखा है, ये कैम्ब्रिज, ठीक है। तो ट्रैफिक इज़ रजिस्टर्ड यूके चैरिटी नंबर, सो आई थिंक दैट इज़ एन एनजीओ। कंपनी नंबर दिस, आवर हेडक्वार्टर्स आर लोकेटेड एट ट्रैफिक डेविड एटनबोरो बिल्डिंग, पेम्बोक स्ट्रीट कैम्ब्रिज, ठीक है। ट्रैफिक इज़ अ मेंबर ऑफ द कैम्ब्रिज कंजर्वेशन इनिशिएटिव, राइट। तो ये हो गया ट्रैफिक इंटरनेशनल, ठीक है। तो हमने क्या क्या देख लिया, ट्रैफिक देख लिया, साविन देख लिया। साविन तो एनफोर्समेंट नेटवर्क है, साउथ एशियन वाइल्ड लाइफ एनफोर्समेंट नेटवर्क। उसमें भूटान, मालदीव्स, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका भी है, ठीक है। तो ये साविन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, जबकि ट्रैफिक एनजीओ हो गया। इसका भी यूनाइटेड किंगडम में है, कैम्ब्रिज में। और किसी का था कैम्ब्रिज यूनाइटेड किंगडम में, आई थिंक इट वाज नहीं, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल का था, ठीक है। बट दैट वाज एन एनजीओ, ठीक। तो ट्रैफिक इज़ ऑल्सो एन एनजीओ, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल इज़ ऑल्सो एन एनजीओ। देन IPBES, ये क्या है, इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। अब IPBES का फुल फॉर्म देखो, तो आई से हो गया इंटर गवर्नमेंटल, फिर पी से पॉलिसी या प्लेटफॉर्म, फिर बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज BES। तो इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी या इंटर गवर्नमेंटल साइंस प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज, ये याद रख लो। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर बॉन जर्मनी में है, और ये UN की बॉडी नहीं है, ठीक है। इट इज़ नॉट रिलेटेड टू UN। इनफैक्ट अभी तक हमने जितने भी पढ़े, सिर्फ एक ये इकोसॉक है, यही है UN का, बाकी तो कोई नहीं है, ठीक है। फिर कंजर्वेशन इंटरनेशनल US में बना था 1987 में। और ये क्या है, ये ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, ये 1992 अर्थ समिट के ही उपरांत बन गई थी। गिव्स फाइनेंसेस टू कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, UNFCCC, UN कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड UN कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, UN कन्वेंशन ऑन मर्क्यूरी। इन सभी को के लिए फंड्स कौन देता है, तो दैट इज़ ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी विच वॉज सेटअप इन द आफ्टरमैथ्स ऑफ अर्थ समिट 1992। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन USA में है, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, ठीक है। देन कंजर्वेशन इंटरनेशनल, ये भी US में है। देन ये क्या है, TNC, ट्रांसपेरेंसी क्या है, नहीं, ये इसका फुल फॉर्म देख लेना, ये भी US में है। 1951 आर्लिंगटन टेक्सास USA में बनाया गया था। इट इज़ फेमस फॉर इट्स कैंपेन प्लांट अ बिलियन ट्रीज कैंपेन, ठीक है, प्लांट अ बिलियन ट्रीज कैंपेन। तो द नेचर्स कंजर्वेंसी इसका फुल फॉर्म है, ठीक है, याद आ गया। तो ये भी एक NGO है। तो अब देखो US में मैंने जितने भी पढ़े, उसमें एक तो ये जो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी है वाशिंगटन में, आप उसी को सरकारी मान सकते हो। उसके अलावा द नेचर्स कंजर्वेंसी, वो भी NGO है। और कंजर्वेशन इंटरनेशनल US का NGO है 1987। और द नेचर्स कंजर्वेंसी ये भी 1951 में बनाया गया था, प्लांट अ बिलियन ट्रीज कैंपेन काम करता है, ठीक है। IPBES पढ़े थे अभी, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज, दैट इज़ ऑल्सो एन NGO। सॉरी, दैट इज़ नॉट एन NGO, दैट इज़ इंटर गवर्नमेंटल बॉडी, वो बनाया था बॉन में, ठीक है। तो IPBES इज़ अ इंटर गवर्नमेंटल बॉडी। TNC इज़ एन NGO बेस्ड आउट ऑफ USA, आर्लिंगटन। कंजर्वेशन इंटरनेशनल इज़ एन NGO बेस्ड आउट ऑफ USA, सेटअप इन 1987। ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी UN के अंतर्गत है। मेड इन द आफ्टरमैथ ऑफ अर्थ समिट, गिव्स फाइनेंसेस टू CBD, UNFCCC, UNCCD, UNCPOP, UN Mercury, and Traffic is an NGO. SAVEN is an international intergovernmental organization. BirdLife International, 1922, it is an NGO, and it was set up in Cambridge, United Kingdom. Works closely with IUCN and publishes the important biodiversity areas. Another NGO was based out of Cambridge, United Kingdom. I think that was Traffic International, for checking trade in wildlife species, ठीक है, wildlife trade monitoring network. So that is Traffic. So it was set up by IUCN and WWF, ठीक है। तो अब देख लो, कैम्ब्रिज में ये भी है, कैम्ब्रिज में बर्ड लाइफ इंटरनेशनल भी है। और बर्ड लाइफ इंटरनेशनल किस एसोसिएटेड बॉडी से जुड़ा है, IUCN से। सिमिलरली ट्रैफिक अगर पूछे कौन बनाया है, तो IUCN बनाया है इन एसोसिएशन विद WWF, ठीक है। इसके अलावा फिर ITTI, दैट इज़ ऑल्सो NGO दैट वाज सेट अप बाय UNCTAD एज एन NGO इन योकोहामा, जापान। एंड UN Forum on Forests, that is an, I think, intergovernmental organization set up by UN ECOSOC in New York. अब इसके अलावा CEPF है, that is ग्लोबल लेवल
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ग्रांट्स टू NGOs फॉर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स कंजर्वेशन, ठीक है। तो इसका एक फुल फॉर्म देख लो, क्रिटिकल इकोसिस्टम पार्टनरशिप फंड, ठीक है। ये भी यूएस में बनाया गया था। क्रिटिकल इकोसिस्टम पार्टनरशिप फंड यूएस में बनाया गया था। ग्रांट्स प्रदान करता है बेसिकली फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। एक तरह का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फर्म है ये, या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एंटिटी है विच प्रोवाइड ग्रांट्स टू NGOs फॉर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। क्रिटिकल इकोसिस्टम पार्टनरशिप फंड यूएस में बना, ठीक है। फिर बायोडाइवर्सिटी फाइनेंस इनिशिएटिव, अब ये बनाया गया था, कई मल्टी स्टेक होल्डर है, तो समझ लो यूरोप और UNDP मिलकर बनाए हैं ये इसको, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी फाइनेंशियल इनिशिएटिव या बायोडाइवर्सिटी फाइनेंस इनिशिएटिव। वेराज ये जो था CEPF, कॉम्प्रिहेंसिव इकोसिस्टम पार्टनरशिप फंड, नहीं, क्रिटिकल इकोसिस्टम पार्टनरशिप फंड, यही था ना, क्रिटिकल इकोसिस्टम पार्टनरशिप फंड, ठीक है। वो यूएस में बनाया था, जबकि बायोफिन दैट इज़ बायोडाइवर्सिटी फाइनेंस इनिशिएटिव वो जर्मनी और UNDP और यूरोपियन यूनियन ने मिलकर बनाया है। फिर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ये एक NGO है और ये एक रिपोर्ट निकालती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिविंग प्लानट रिपोर्ट। ये ग्लांड स्विट्ज़रलैंड में बना है। इट इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन, NGO है, ठीक है। इसके बाद है ये द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम बेनिफिट्स, TEEB, that is an international initiative of environment ministers of G8+5 countries that computes the economic benefits and cost of loss of biodiversity. As a response to TEEB, पवन सुखदेव हमारे यहाँ से launched a global study. India is a member of TEEB. तो इंडिया TEEB का मेंबर तो है, बट TEEB जैसा सिमिलर काम करने के लिए इनिशिएटिव इंडिया में कौन लिया, तो पवन सुखदेव ने लिया। द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम बेनिफिट्स, सो दैट इज़ एन इंटरनेशनल इनिशिएटिव। तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी ना, क्योंकि यहाँ एनवायरमेंट मिनिस्टर्स ऑफ G8+5 कंट्रीज़ हैं इंक्लूडिंग इंडिया, ठीक है। द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम बेनिफिट्स। फिर ग्रीन पीस इंटरनेशनल है, ये 1969 में एज एन NGO बना था। ये एज एन NGO बना था ग्रीन पीस इंटरनेशनल 1969 में। इसका हेडक्वार्टर नेदरलैंड्स एम्स्टर्डम में है एंड इसका एक स्लोगन है गो बियॉन्ड ऑयल। वेयर एज प्लांट अ बिलियन ट्रीज कैंपेन था द नेचर्स कंजर्वेंसी, दैट वाज एन NGO इन USA, ठीक है। गो बियॉन्ड ऑयल था ग्रीन पीस इंटरनेशनल NGO का, एम्स्टर्डम नेदरलैंड्स में जो NGO है 1969 में, गो बियॉन्ड ऑयल। देन 1972 में UN ह्यूमन एंड एनवायरमेंटल एट स्टॉकहोम, ये वही तो है, मतलब स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो हुई थी उसका बेसिकली देयर इज़ अनदर नेम फॉर दैट कॉन्फ्रेंस, दैट इज़ UN ह्यूमन एंड एनवायरमेंटल कॉन्फ्रेंस। देन 1992 में UN कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट, ये बेसिकली सब लोग जानते हैं स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, बट एक्चुअली उसका नाम क्या है, उसका नाम है UN ह्यूमन एंड एनवायरमेंटल कॉन्फ्रेंस। उसी तरह से जो अर्थ समिट है दैट इज़ द कॉमन नेम, बट उसका टेक्निकल नेम है UN कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ऑल्सो नोन एज अर्थ समिट। फिर 2002 जो Rio+10 हुआ था, आई थिंक जोहान्सबर्ग में हुआ था, उसका भी एक नाम है, दैट इज़ वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। 2012 में फिर से हुआ था रियो में, उसका नाम था UN कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट या Rio+20। तो रियो का नाम था वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दैट हैपेंड इन जोहान्सबर्ग 2002, वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एंड 2012 में जो हुआ था दैट वाज आई थिंक दैट वाज वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन, नहीं, UN कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, दैट वाज Rio+20। तो ये सारे NGOs एंड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हो गए। अब थोड़ा सा और बस बचा है, ठीक है। तो ये देखते हैं अब अगले वीडियो में, सर्वेज बचे हैं और ये थोड़ा सा बचा है, और फिर लास्ट में ये कुछ लेजिस्लेशंस हैं, बस कोस्टल रेगुलेशन जोन्स हैं, ठीक है।